الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیے تاریخی و یادگار دن 22 سال کے وقفے کے بعد سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان نے الامین کیمپس کا کیا دورہ۔ الامین ایجوکیشنل سوسائٹی میں خوشی کی لہر، اب ایک نئے دور کی ہو سکتی ہے شروعات۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے آج 22 سال کے بعد میں دوبارہ الامین کیمپس میں آیا ہوں، اور الامین ایک تحریک ہے۔ اب خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے فرزند عمر اسماعیل خان صاحب اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ الامین کے وہ گولڈن ڈیز پھر واپس آئیں گے، اور ان کے اچھے کاموں میں تعلیم کی ترقی کے لیے ہم ان کا پورا ساتھ دیں گے۔ یہ بچوں کی کامیابی ہماری کامیابی ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، تو اس کام پہ ہمیں لگ رہے ہیں۔ یہ خان صاحب یہ ایک بات بولے کہ جو ایجوکیشن ہی ہے راستہ ہماری کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کا، پڑھانے کا، اس پہ ہم اور کریں گے، اس کو یونیورسٹی بنائیں گے اور اس کو تعاون کریں گے۔ وہ دلی پبلک اسکول وغیرہ شروع کیے ہیں، اس میں بہت ترقی ہوگی ان کو، تو وہ چیز کا جو تجربہ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم مدد کریں گے۔ خان صاحب کا دل بہت اچھا ہے، وہ قوم کے واسطے ہمیشہ ہیں اور قوم کی ترقی کے واسطے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا تجربہ، ان کا ساتھ لے کے ہم کام کریں گے۔ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ ڈاکٹر صاحب کا ان کا تھا ہمارے ساتھ۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا عمر میرا بیٹا ہے، اس سے زیادہ کیا پروف ہو رہا۔ ڈاکٹر صاحب کے بھی ساتھ کام کیا ہے، خان صاحب ہمارے والد کے بھی ساتھ کام کیا، ہم بھی بچپن سے دیکھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمارا اسٹوڈنٹ کے لیے ہم کچھ بھی کرنے تیار، اسکالرشپ 2 کروڑ روپے کی بانٹتے ہیں، نہ صرف الامین کے، نہ صرف غوثیہ کے، دوسرے اسکولوں کو بھی بانٹتے ہیں۔ اب رحمان خان صاحب آگے جانے کے بعد ہمارے کو اور تھوڑا ہمت پیدا ہو رہی ہے اور اچھی روشنی دکھ رہی ہے ہمارے کو۔ اور کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھی، نا اتفاقی پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، غلط فہمیاں تھی، وہ بھی دور ہو گئے۔ میں کبھی جو ہے رحمان خان صاحب کو ڈاکٹر صاحب کے خلاف بولتے ہوئے کبھی نہیں سنا، جبکہ میرے بہت اچھے تعلقات رحمان خان صاحب سے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کبھی بھی رحمان خان کے خلاف کچھ کہا تو تب یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اختلافات تھے، اختلافات نہیں تھے، دوریاں تھی، کچھ غلط فہمیاں تھی، وہ دور ہو گئی۔ 11 اگست 2022 بروز جمعرات الامین ڈگری کالج میں منعقدہ تقریب میں سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان نے شرکت کی۔ موقع تھا ڈاکٹر شاکرہ خانم کی ہندی کتاب کے رسم اجرا کا۔ اس تقریب میں مقامی ایم ایل اے ادے گروڈاچاریہ اور دیگر احباب نے شرکت کی۔ اس تقریب کے دوران الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین عمر اسماعیل خان نے الامین موومنٹ کے لیے رحمان خان کی خدمات کا ذکر کیا۔ ان دنوں ڈاکٹر ممتاز احمد خان اور کے رحمان خان کے درمیان موجود گہرے تعلقات پر عمر اسماعیل خان نے روشنی ڈالی۔ My father's family, my father and my mother, Khan and his wife, they have done a lot of international trips together. They used to go to all over Malaysia and Singapore, many other places they used to go together. The closeness, that bond was there between our families. I remember that now he used to me that how close we were. And my father, every morning, compulsorily my father used to call him. I used to remember that in the house when we were small, that around earlier we had landlines, we didn't have mobile phones. Till 8 a.m. my father used to be walking around. He didn't want to disturb anybody before 8 because that's a resting time. As soon as it was 8 a.m. the first call used to go to K. Rehman Khan Sahab and ask him for some help in politically to start the Alumni Medical College or the many other institutions that they run today. He used to call him, take his advice. Together they built up this great alumni movement. اس پروگرام کے بعد ڈاکٹر کے رحمان خان الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے دفتر گئے۔ سوسائٹی کے چیئرمین عمر اسماعیل خان اور دیگر عہدیداروں سے طویل گفتگو کی، ماضی کی یادیں، ماضی کے لمحات کو یاد کیا۔
उन दिनों अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के बानी मरहूम डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान के साथ कदम ब कदम चलते हुए कई तालीमी इदारों की बुनियाद रखने वाले अल अमीन तालीमी इदारों को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले डॉक्टर के रहमान ख़ान ने अपने इस दौरे पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के नायब चेयरमैन डॉक्टर अहमद शरीफ सिराज, रोज़नामा पासबान के एडिटर उबैदुल्लाह शरीफ ने अपने ख़यालात का इजहार किया। पेश है जनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। बड़ी खुशी हुई मुझे आज 22 साल के बाद मैं दोबारा अल अमीन कैंपस में आया हूँ। और अल अमीन एक तहरीक है। ये तहरीक तालीमी तहरीक जो अर्ली 60s में शुरू हुई, ये मुसलमानों में तालीमी बेदारी लाने में एक अर्ली ईयर्स में नुमाया रोल अदा किया है सारे हिंदुस्तान। हर इदारों में कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं, बनते हैं, पर इदारे कौम के होता रहते हैं, उसको आगे ले जाना सबकी एक जिम्मेदारी है। तो वही जज्बे के साथ मैं आज मेरे पूरे जो भी डिफरेंसेस है उसे बाहर रख के मैं अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेज कैंपस, जो हम तमाम मिलके कैंपस को डॉक्टर साहब की रहबरी में एक कैंपस शुरू किए थे। रमजाई से तरक्की होना चाहिए। अब खुशी है कि डॉक्टर साहब के फर्जंद उमर इस्माइल खान साहब इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अल अमीन के वो गोल्डन डेज फिर वापस आएंगे और इनके अच्छे कामों में तालीम की तरक्की के लिए हम इनका पूरा साथ देंगे। और तालीमी पसमानदगी जो मुसलमानों में है तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अब अल्लाह का फजल है कि हिंदुस्तान में बहुत तरक्की हो रही है, यूनिवर्सिटियां बन रहे हैं। अब कर्नाटक में ही 2-3 यूनिवर्सिटियां बने। मेरी एक ख्वाहिश थी कि अल अमीन यूनिवर्सिटी बने। इंशाअल्लाह ये कमेटी आगे बढ़े तो हमारे से जो भी ताउन होगा हम करेंगे। अल अमीन यूनिवर्सिटी जो अल अमीन इदारा सबसे पहले तालीमी तहरीक का इदारा है, उसे और ज़्यादा तखफीत देना हमारा तमाम की जिम्मेदारी है। आपने और डॉक्टर साहब ने मिलकर इस तहरीक को आगे बढ़ाया। इब्तदाई दिनों में आप सब ने मिलकर कंधे से कंधा मिलकर इस इदारे को कायम किया, लेकिन 22 साल वक़्फ़ा के बाद फिर दोबारा रहमान खान साहब यहाँ आ रहे हैं, तो इसे किस माने में देखना चाहिए? नहीं, ये मौका था। मैं ये जिन 22 सालों में मैं भी तालीमी तहरीक में था, तो ये नहीं कि यहाँ ये मेरी तालीमी तारीख 22 साल के बाद ख़त्म हो गई। तालीमी तहरीक जारी रही। अब अल्हम्दुलिल्लाह में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इन 22 सालों में हमने बेंगलुरु में स्टैंडर्ड हाई स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल के इदारे DPS के नाम पर शुरू किए हैं। लमदा वहाँ भी खिदमत हो रही है। अब लगभग वहाँ 30,000 बच्चे इन DPS की इदारों में पढ़ रहे हैं। ये भी एक कंट्रीब्यूशन सही बात है, लेकिन ये मिल्लत का इदारा था जिसे आप छोड़कर अब चले गए थे। फिर नहीं, मिल्लत का था नहीं, आदमियों को छोड़ के जाना है, दुनिया छोड़ के जाना है,
इदारे छोड़ के जाना है। अब हिंदुस्तान बने कोई, अब मोदी जी बोलते हैं कि महीने बनाया तो होता है। तो बहरहाल एक कैसे महसूस हो रहा है सर, क्या बड़ी खुशी हो रही है, बताएं। क्या आइंदा कैसे ताउन रहेगा सर इस? देखिए, मैं उमर को मेरे बेटों की तरह समझता हूँ। वो तालीम कौम के जो भी इदारे हैं, वहाँ अना अगर आ गई तो इदारे बर्बाद हो जाते हैं। अना सब कुछ छोड़कर हम सब मिलकर काम करना है। आखिर में क्या मैसेज है? तालीम 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 मुसलमानों के लिए, उसके बगैर कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान इज्जत की जिंदगी गुजारना हम चाहते हैं तो तालीम के जरिए से हम हमारा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो इस ये मैसेज हर आदमी, एक इदारे से तालीम, पूरी तालीम है, सोसाइटी में हम इतने मजबूत हो कि हम सोसाइटी को देने वाले बने। तालीम के जरिए से भी हम हमारी कौम को भी तालीम देना है जाए, उसके साथ हम दूसरों को भी देना है। जब एक सेक्युलर स्टेट और एक मिली जुली कल्चर के स्टेट में रहते हैं, सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। पहले से अलमीन यही करते आए। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत दिन से मेरी कोशिश थी कि रहमान खान साहब को अलमीन कॉलेज के अंदर एक किसी मौके पर दावत देना। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बुक का ये था हिजरा था, उसमें जो है बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये पहले से हम बहुत ताल्लुक़ है हमारे, समझो इतने साल से जो है उनके बेटे मकसूद से मेरे ख़ास दोस्ती है और हमें हमेशा टच में रहे और ऐसा टच में रहे हम लोग। तो आज खान साहब आए, खान साहब से बैठ कर बात करना बहुत अच्छा लगा। अलमीन की हिस्ट्री वो हम ना सुनाए। अब्बा के बाद जो है आप शायद अलमीन में जो सबसे ज़्यादा वक्त गुजारे हैं वो खान साहब ही, और शुरुआत से लेकर अब तक जो गुजरा है। और दूसरे जो भी हमारे अलमीन हिस्ट्री, मुस्लिम कम्युनिटी की जो हिस्ट्री फॉर फास्ट 30-40 ईयर्स कर्नाटक के अंदर जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनकी हिस्ट्री, ये सब जो है एक आधा घंटा खान साहब बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा उनके साथ बैठ को, एक बुजुर्गी दिखी और मुझे बहुत खुशी हुई कोई आया हमारे साथ। और जो भी हुआ वो उनके जुबानी के बोले कि जो भी होता है अच्छे के वास्ते होता है, हमें समझ नहीं कि बुरा है अच्छा है, लेकिन वक्त आगे जाने से दिखता है कि जो भी हुआ खैर हुआ, अच्छा हुआ। वो वक्त था, वो वक्त में जो होना था वो हुआ। अब इसके बाद जो वक्त है इसमें हम सब साथ मिलकर एजुकेशन के लिए काम करेंगे। काफी वक्त उन्होंने यहाँ पर गुजारा, आने वाले दिनों की तरक्की के लिए कुछ बातें यहाँ पर जी देखो, अब क्या है हमारे अलमीन में बोलते अलमीन एजुकेशन सोसाइटी हौसिया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ट्रस्ट जो है ये कौम के बच्चों के लिए खास तरह है। ये लोग हम जो है कम फीस लेके बच्चों को अच्छे टीचर और वगैरह रख के ज़्यादा साथ कोशिश करके बच्चों को हमें काबिल बना। ये बच्चों की कामयाबी हमारी कामयाबी है, ये हमारा मकसद है। तो इस काम पे हमें लग गए हैं। ये खान साहब भी यही बात बोले कि जो एजुकेशन ही है रास्ता हमारी कम्युनिटी को डेवलप करने का, बढ़ाने का। इस पर हम और करेंगे, इसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उसमें तावन करेंगे। वो दिल्ली पब्लिक स्कूल वगैरह शुरू किए हैं, उसमें बहुत तरक्की होगी उनको, तो वो चीज़ का जो तजुर्बा है वो हमारे साथ शेयर करेंगे और हम मदद करेंगे। खान साहब का दिल बहुत अच्छा है, वो कौम के वास्ते हमेशा हैं और कौम की तरक्की के वास्ते हैं। इंशाल्लाह उनका तजुर्बा, उनका साथ लेके हम काम करेंगे। एक सवाल बार बार ये उठता है कि डॉक्टर साहब जब तक बाहर आया तो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाए, एक कमी रह गई है। देखो ये आप, हाँ वो थी जब तक अब्बा हयात थे वो नहीं हो सका, उसके कई रीजन ही। अब वो जो है वो रीजंस पे हमें जाना, उसमें डिटेल में जाना, वो क्या वजह थी क्या थे, उसमें फायदा नहीं है। हमें आगे का पीछे का भूल जाना, आगे का सोचना। आगे जो है हम सुबह से शाम तक इधर बैठते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों के एजुकेशन की फिक्र करते हैं। जैसा हमारे कैंपस में डिग्री कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, BBA MBA है, BCA है, MSc कंप्यूटर साइंस है, B.Ed कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, PUC कॉलेज है, स्कूल है, ये सब कॉलेजेस हैं। रिसर्च फाउंडेशन है, IAS एकेडमी है। ये सब इतना ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, तरक्की के लिए, कि सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अक्सर गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जो दूसरे इदारों की फीस नहीं दे सकते, वो बच्चे यहाँ हमारे पास एडमिशन लेते हैं। वो फीस कम है, उनकी फीस अरेंज करना, सैलरी इस टाइम को देना, ये सब चैलेंजेस हमारा बहुत हैं। जो भी मदद करने रेडी है, हम उनके पास जाके मदद लेने तैयार हैं। हजरत जो खान साहब बोले, अना
मगरूरी ये सब नहीं, ख़त्म, ये हमारा ईगो ख़त्म, हम बिल्कुल हमें मामूली इंसान ही, जहाँ पे भी कोई भी हम अलमीन को मदद करने रेडी है, हम ये ना मदद ना स्टूडेंट्स की फीस के ज़रिए से कुछ मदद करे या कुछ और ज़रिए से मदद करे, हम जाएंगे उनके पास, मदद लेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ते रहे तो समझो अब्बा की, हमारे वालिद साहब की रूह को खुशी मिलेगी कि एक लायक काम हो रहा है इधर, और हमारा मकसद भी ज़िंदगी आई है, सिर्फ तरक्की है थ्रू एजुकेशन, ये हमारा मकसद है। जो दौर था, जो इख्तलाफात का जो दौर था खान साहब के साथ, हाँ, ऐसा आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। वो डॉक्टर साहब का उनका था, हमारे साथ अभी अभी डॉक्टर साहब ने कहा उमर मेरा बेटा है, इससे ज्यादा क्या प्रूफ होना। डॉक्टर साहब के भी साथ काम किया है, खान साहब हमारे वालिद के भी साथ काम किया, हम भी बचपन से देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, परेशानी वाली बात कोई नहीं। कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कैसे? जैसे उमर साहब ने कहा, हमारा प्रोडक्ट ही हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट के लिए हम कुछ भी करने तैयार। स्कॉलरशिप 2 करोड़ रुपए की बांटते हैं, ना सिर्फ अल-अमीन के, ना सिर्फ गौसिया के, दूसरे स्कूलों को भी बांटते हैं। अब रहमान खान साहब आगे जाने के बाद हमारे को और थोड़ा हिम्मत पैदा हो रही है और अच्छी रोशनी दिख रही है हमारे को, इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ेगी और तहरीक और आगे इंशाल्लाह बहुत कम वर्ष में और बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। आखिर में लोगों को क्या मैसेज आप दे रहे हैं? लोगों को यही मैसेज है, आइए अपने बच्चों को पढ़ाइए। अंग्रेजी स्कूल्स कॉलेजेस, क्रिश्चियन स्कूल्स कॉलेजेस में जा रहे हैं, इधर आइए, हमारे पास आइए। हमारा रिजर्वेशन रेट्स 50% रहता है, अफसोस है कि भरता नहीं 50%। देखिए अल-अमीन जो है ये एक सिर्फ इदारा नहीं है, ये एक तालीमी इनकलाब बर्पा करने वाला इदारा है। ना सिर्फ बेंगलोर कर्नाटक बल्कि सारे हिंदुस्तान में जो है अल-अमीन के ज़रिए एक इनकलाब, तालीमी इनकलाब आया। ये एक ऐसा अजीम इदारा है और इसका माज़ी भी अजीम था और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी बहुत अजीम और शानदार रहेगा। लेकिन जो हाल ही में काफ़ी इख्तलाफात यहाँ पर देखने को मिले। देखिए इतना बड़ा इदारा है, ऐसे इसमें जो है कुछ गलत अनासर आ जाते हैं। वो मौजूदा चेयरमैन और मैनेजिंग कमेटी जो है उस अनासर को जो है निकाल फेंका है और अपने जो भी यहाँ गलतियाँ हुई थी उसको सुधार लिया है। और कुछ कहना चाहिए? आप कह रहे थे कि इख्तलाफात रहमान खान साहब और डॉक्टर साहब के, मैं नहीं समझता इख्तलाफात थे, दूरियां थी। डॉक्टर रहमान खान साहब भी मसरूफ़ थे, मरकज़ी वज़ीर थे, राज्यसभा के मेंबर रहे और कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी। नाइत्तफ़ाक़ी पैदा होने का सवाल ही नहीं होता, गलत फहमियाँ थी, वो भी दूर हो गए। मैं कभी जो है रहमान खान साहब को डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ बोलते हुए कभी नहीं सुना, जबकि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक़ात रहमान खान साहब से हैं। उसी तरीके से डॉक्टर साहब ने भी कभी भी रहमान खान के ख़िलाफ़ कुछ कहा तो तब ये हम समझ सकते हैं कि इख्तलाफात थे। इख्तलाफात नहीं थे, दूरियां थी, कुछ गलत फहमियाँ थी, वो दूर हो गई।